Good morning, students, and welcome to the first lecture on numerical solutions of system of linear equations. It means आपके पास में system of linear equations given है, उसके numerical solutions वाले methods हम study करेंगे. Basically, in your syllabus there are two methods. First one is Gauss elimination method, which is our direct method basically, and second one is the Gauss-Seidel method, which is an iterative method. So let us define what is the system of linear equation, and then we find the solution by using Gauss elimination method. So most of the problems arising in the engineering and applied sciences require the solution of linear algebraic equations in computations of eigenvalue and eigenvectors. I think you know what is the eigenvalue and eigenvector of a matrix. आपको पता होगा because आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ी होगी है ना? Yes, sir. Well, okay. So basically, we have already studied about how do we find the eigenvalues and eigenvector of a matrix, and now in this lecture we shall study how do we find the solution or numerical solution of the system of linear equations. यदि आप लोगों को पता होगा तो फर्स्ट ईयर में आपके पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन था, उसको हमने उसके मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया था इफ यू रिमेंबर, और उस मैट्रिक्स से हमने उसका सॉल्यूशन भी निकाला था यदि आपका सिस्टम नॉन होमोजीनियस था या होमोजीनियस था. उसके लिए कुछ कंडीशंस थी इफ यू रिमेंबर. नॉन होमोजीनियस के लिए हम रैंक फाइंड आउट करते थे. आइडिया है फर्स्ट ईयर में पढ़ा आप लोगों ने, whether your system of equation is consistent or inconsistent. Yes, sir. Consistent meaning rank of the augmented matrix equals to rank of the coefficient matrix, and inconsistent means if the rank of augmented matrix not equals to rank of the coefficient matrix, then your system is inconsistent. It means system does not have any solution. In case of consistent, your solution may be either unique solution or infinite number of solutions. So first of all, we define the system of linear equation. So consider the system of n linear equations in n unknowns. A11 x1 plus A12 x2. A1n xn equals to B1. This is our first equation. Similarly, second equation, and this is our nth equations. Here A11, A12, An all are the real constants. All right, and x1, x2, xn are the unknown variables to us, and these are the right hand part B1, B2, Bn. So this is our non-homogeneous system of n equations in n unknown variables. Right? Now this system of equations can be written into a matrix form Ax equals to B, where A is the coefficient matrix. It means आपके पास में जो लेफ्ट हैंड पार्ट में जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं A11, A12, An. So इस मैट्रिक्स का नाम हमने क्या दे दिया? A मैट्रिक्स दे दिया. Where A11, A21, An1 are the coefficients of x1 only. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में x1 के कोफिशिएंट क्या हैं? A11, A21, An1. So it means first column of matrix A denotes the coefficients of the x1. Similarly, the second column of the matrix A denotes the coefficients of x2. It means x2 के coefficients आपके पास में क्या है? A12, A22, An2. Similarly, the nth column of the matrix A is the basically is the coefficients of the xn. A1n, A2n, Ann. So this is our coefficient matrix A. X is the unknown variables column. हमारे पास में जो भी unknown variable है x1, x2, xn, इसका column क्या है? x1, x2, xn, which is of order n cross 1. And B is the right hand part of the system of equation B1, B2, Bn, which is of order n cross 1. So this matrix Ax equals to B is well satisfied because this is of order n cross n. If we multiply A by x, then we get n cross 1 matrix. Okay. Right. So this is our matrix equation for the corresponding system of equations. Now the solution of this numerical solution of this system of equation Ax equals to B. There are two methods: direct method or iterative methods. In direct method, we will discuss about the Gauss elimination method, which is in your syllabus. And in the iteration type of methods, we shall study about the Gauss-Seidel methods only. So in this lecture, we shall study about the Gauss elimination method. How do we find the solution of the system of equation Ax equals to B by using Gauss elimination method? Okay. So first one is the Gauss elimination method. This is the elementary elimination method, and it reduces the system of equations to an equivalent upper triangular system, which can be solved by पैच सब्स्टिट्यूशन. इट मीन्स हमारे पास में कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है,
उसको हम क्या करेंगे, एक अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. आई थिंक एवरीबॉडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर ट्रायंगुलर सिस्टम. आप लोगों को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का पता है? हेलो. यस सर. हाँ, क्या होती है बेटा वो? सर उसमें जीरो बन जाएगी हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें ट्रायंगुलर फॉर्म में. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? मतलब डायगोनल के नीचे वाली जो एंट्रीज होती है सारी की सारी जीरो होती हैं. डायगोनल के ऊपर वाली जीरो वैल्यूज तो नॉन जीरो होंगी और कुछ वैल्यूज भी जीरो भी हो सकती हैं. बट डायगोनल के जो नीचे होती हैं स्ट्रिक्टली वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए. बिकॉज मैट्रिक्स आपकी अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती है. सो आपका जो मेन डायगोनल है उसके नीचे की सारी एंट्रीज यदि जीरो, देन योर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. And if your entries of the matrix above the main diagonal are zero, then your matrix is lower triangular matrix. Yes or no? So basically हमारे पास क्या टारगेट है इसमें? आपके पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? अपर ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे. देन फॉर द सॉल्यूशन वी यूज द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड. यदि आपको इट मींस आप इस तरह से देख सकते हैं इसको कि हमारे पास में ये मैट्रिक्स गिवन है कोएफिशिएंट्स की. सो हमारे पास में मेन डायगोनल क्या है? a11 a22 ann. इस मेन डायगोनल के नीचे जो भी एंट्रीज है जैसे a21 an1 an2 an-1 2, इन सारी एंट्रीज को हम जीरो बनाएंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है. सो हमारी मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी. इट मींस हमारे पास जो मेन डायगोनल है इसके नीचे वाली जो सारी एंट्रीज है वो जीरो रहेगी और जो ऊपर वाली एंट्रीज है वो रिप्लेस हो जाएगी सम अदर कोएफिशिएंट. ठीक है. So this is our first target: reduce the system of equation into the upper triangular form, then use the back substitution method to find the values of x1, x2, and xn. So these are the two steps for the solution of Gauss elimination method. Clear? So let us consider the system of equations. Let the system of n linear equations in n unknowns be given by this one: a11 x1. This is our first diagonal entry. This is a22 x2. This is our second diagonal. And ann xn, this is our nth diagonal entry. Now there are two steps in the solution. First one, we eliminate the unknowns and back substitution method. So first step क्या रहेगा? हमारे पास में जो diagonal entries हैं a11 x1 a22 x2 ann xn. अब first of all we convert the system of equation into the upper triangular matrix. तो हम क्या करेंगे? हमारे पास में ये जो हमारे पास first diagonal है इसके नीचे की सारी एंट्रीज को हम जीरो बनाएंगे बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस. सो बताइए यदि हम इसको जीरो बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास में इस फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज करेंगे यहाँ पे. तो क्या ऑपरेशन होना चाहिए इसको जीरो बनाने के लिए? एक्स तरह से आपके x1 को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं यहाँ से बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन. तो क्या करना चाहिए आपको यहाँ पे इसको जीरो बनाने के लिए? If we divide this equation, first equation by a11 and then multiply by this coefficient a21, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? a21 डिवाइड बाई a11. यहाँ पे बन जाएगी a21 multiply by a12 डिवाइड बाई a11 and so on. Now subtract this equation from this second equation. It means हम फर्स्ट इक्वेशन को यदि हम a11 से डिवाइड कर दे थ्रू आउट और उसको a21 इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास में जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास ये वाली एंट्री जीरो बन जाएगी. यस और नो? यस सर. यस सर. हमको a21 इट मींस बेसिकली हमारे पास जो x1 है उसको एलिमिनेट करना है. अब x1 को एलिमिनेट करने के लिए हमारे इसका कोएफिशिएंट देखेंगे. हमारे पास में इसका कोएफिशिएंट क्या है? a21 है. सो हम इस a21 को जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे? इस फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1 we divide whole equation by this coefficient a11, then multiply by this coefficient a21 and then subtract from this equation. तो हमारे पास में ये वाली एंट्री जीरो बन जाएगी. ठीक है. ये x1 एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से. तो हमारे पास में x2 x3 और रिमेनिंग वेरिएबल्स बचेंगे. सिमिलरली यदि nth इक्वेशन की हम बात करें, यहाँ से हमको x1 एलिमिनेट करना है तो इट मींस हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को a11 से डिवाइड करेंगे और इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में से माइनस कर देंगे. दिस इज आवर प्रोसीजर टू एलिमिनेट द x1 फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम. ठीक है.
सिमिलरली सेकंड x2 को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास में थर्ड इक्वेशन ऑनवर्ड वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे. नाउ फर्स्ट स्टेप इज द अननोन्स आर एलिमिनेटेड टू ऑब्टेन सेकंड इक्वेशन. हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे. वी एलिमिनेट द x1 from the second equation. We multiply the first equation by this number minus a21 upon a11 because यहाँ पे हमने इसको a11 से डिवाइड कर दिया और इस कोफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये दोनों के साइन क्या है पॉजिटिव आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हमने माइनस कर दिया. ठीक है. So we multiply this equation by this factor minus a21 upon a11 and then add into the equation number second equation of the equation we obtain this equation. It means आपके पास में जो वाली सेकंड इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास में a22 prime x2 plus a23 prime x3 plus and so on equals to b2 prime where a22 prime is given by this relation a22 minus a12 a21 upon a11. सो बेसिकली करना कुछ ही नहीं है, आपको सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन करते हुए इस x1 को एलिमिनेट करना है. उसके लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन को a11 से डिवाइड करना और इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके और इसमें से साइन देखना है. यहाँ पे यदि दोनों के साइन सेम है तो माइनस करना और अपोजिट साइन है तो एडिशन प्लस के साथ में एडिशन कर देना है. सो वी गेट दिस इक्वेशन सेकंड इन दिस फॉर्म. दस द प्राइम हियर द प्राइम इंडिकेट द ओरिजिनल एलिमेंट्स हैज बीन चेंज. इट मींस हमारे पास में ये प्राइम्स है वो डिफरेंट कोफिशिएंट्स है. इट मींस आपने जो ऑपरेशन अप्लाई किया उसके बाद में कुछ एंट्रीज में चेंज आ गए, उसको हमने इस नोटेशन से डिनोट कर दिया यहाँ पे. इन ए सिमिलर फैशन वी कैन एलिमिनेट x1 फ्रॉम द रिमेनिंग इक्वेशंस आफ्टर एलिमिनेटिंग x1 फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन ऑफ द थ्री वी ऑब्टेन द सिस्टम. इट मींस हमारे पास में ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसमें हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम की जो सारी एंट्रीज है x1 के अलावा यहाँ पे फर्स्ट एंट्री के अलावा इन सारी एंट्रीज को जीरो बनाने के बाद में हमारे पास ये जो सिस्टम है किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ यू कैन सी हियर दैट x1 हमारे पास में फर्स्ट डायगोनल पे है, इस डायगोनल के नीचे वाली सारी एंट्रीज जीरो आ रही है हमारे पास में. x2 हमारे पास में सेकंड डायगोनल पोजीशन पे है बट ये हमारे पास में अभी नॉन जीरो बिकॉज हमने क्या किया अभी तक x1 के नीचे जो फर्स्ट एंट्रीज है उनको सबको जीरो बनाया बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. सो in a similar manner we can find or we can reduce these entries to zero by using elementary row transformation. अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x2 ये सेकंड डायगोनल पे है, अब इसके नीचे वाली सारी एंट्रीज को आप जीरो बना सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेकंड इक्वेशन. अब आप मुझको बता सकता है कि यदि हमको इस इक्वेशन इस नंबर को जीरो बनाने के लिए इस इक्वेशन का एप्लीकेशन यदि करना है तो क्या ऑपरेशन होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग. हमको ये वाला कोएफिशिएंट जीरो सर a22 x2 से डिवाइड और a32 x2 से मल्टीप्लाई. x2 तो आपके पास में अननोन है बेटा यहाँ पे है ना, हम ओनली कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे. पहले इस इक्वेशन को a22 प्राइम से डिवाइड कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, और ये दोनों का साइन सेम है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे इसमें से. ठीक है, क्लियर. यस सर. ठीक है, तो इस तरह से करना, मतलब x2 के जो हमारे पास सेकंड डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे वाली सारी एंट्रीज को जीरो बनाएंगे. सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड डायगोनल है उसके नीचे वाली एंट्रीज को हम जीरो बनाएंगे एंड सो ऑन. तो हमारे पास में डायगोनल के नीचे वाली सारी एंट्रीज हमारे पास क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी. ठीक है, सो हमारे पास में इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. a1 फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में बन के आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी और लास्ट इक्वेशन जो है आपकी ये वाली बन जाएगी. नाउ यू कैन सी हियर लास्ट इक्वेशन में क्या है, xn इज अननोन वेरिएबल, ये आपके पास में नोन होंगे ann n-1. हियर n-1 डिनोट्स दी n-1 टाइम्स का जो कोएफिशिएंट है वो चेंज हो गया था आपका. ठीक है, एंड दिस वन. सो बाय द यूजिंग द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड. बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब लास्ट इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करेंगे देन उसके बाद में सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट एंड सो ऑन. नाउ इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन देन वी गेट द वैल्यू ऑफ xn. ठीक है, और आपकी xn की वैल्यू क्या हो जाएगी, bn-1 डिवाइड बाई ann n-1. इट मींस आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास xn की वैल्यू ये वाला फ्रैक्शनल नंबर आ जाएगा जो भी है bn डिवाइड बाई ann. ठीक है, अब इसके ऊपर वाली इक्वेशन में हम xn की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, xn-1 की वैल्यू मिल जाएगी. बिकॉज यू कैन सी फ्रॉम हियर हमारे पास थर्ड इक्वेशन में क्या है, x3 से xn तक है, सेकंड इक्वेशन में x2 से xn तक है, फर्स्ट इक्वेशन में x1 से
xn तक है। तो यदि हम यहाँ से x3 निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको x2 मिल जाएगा, और यहाँ से x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको x1 मिल जाएगा। So by using back substitution, first we find the value of xn, then xn minus 1, xn minus 2, x2 and x1, इस तरह से। ठीक है। So this is all about the Gauss elimination method, which has two solution steps. First हम क्या करेंगे, system of equations को upper triangle form में convert करेंगे, then we use the back substitution method to solve the system of equation. कोई डाउट बेटा इस यहाँ तक? नो सर। राइट। सो मेन टारगेट क्या है आपके पास में, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, उसमें हमारे पास उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमारे पास जो, उसको हम पहले अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अपर ट्रायंगुलर में जो बन जाएगा उसके बाद में हम बैक सब्स्टिट्यूशन से उसके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारे पास अननोन से। नाउ देयर इज ए इंपॉर्टेंट रिमार्क हियर, इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द सिस्टम 4, ये हमने जो सिस्टम 4 यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ये कहाँ कैसे फाइंड आउट किया हमने, x1 को एलिमिनेट कर दिया फ्रॉम रिमेनिंग इक्वेशन एक्सेप्ट x1 जो फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे यदि आपको याद है तो हमने क्या किया था, सारे a11 से इस इक्वेशन को डिवाइड किया था, और जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स थे यहाँ पे, इनसे हमने इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया था। ठीक है। x1 को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया था, इस फर्स्ट इक्वेशन को a11 से डिवाइड किया था और इन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इन इक्वेशंस में से माइनस कर दिया था। ठीक है। Now we have used this process. Now if we have divided it by a11, for this reason the first equation is called the pivot equation and a11 is called the pivot element. It means जिस नंबर से आपने इसको डिवाइड किया फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, वो नंबर हमारे पास में क्या बन जाएगा, पाइवोट एलिमेंट बन जाएगा, और जो हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी पाइवोट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। नाउ दिस वन, इफ द पाइवोट इज 0, यदि आपके पास में जो a11 था वो 0 बन जाए यहाँ पे, रिमेंबर हियर, यदि हमारे पास में आइदर दिस इज 0 और क्लोज टू 0, 0 की बात नहीं करें हम, क्लोज टू 0 सपोज क्लोज टू 0 में 0.00001 मान लीजिए आप। अब यदि इस नंबर से आप इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में इसमें एरर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इफ दिस a11 इज आइदर 0 और क्लोज टू 0, और यदि आप इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में इसके जो एरर है सॉल्यूशन में उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। इन कंपैरिजन टू दीज कोफिशिएंट्स, इस a1 की वैल्यू इन कोफिशिएंट के कंपेयर में सपोज बहुत कम है, सपोज इसकी वैल्यू है 0.0001, इसकी वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू 1। तो यदि इन x1 के रिमेनिंग कोफिशिएंट्स है उसके कंपेयर में यदि a11 की वैल्यू क्लोज टू 0 है, तो उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चांसेस को कम करने के लिए हम यूज करेंगे पाइवोटिंग। हमारे पास जिस नंबर से हमने इसको डिवाइड किया वो नंबर हमारे पास क्या था, पाइवोट एलिमेंट था, और ये जो इक्वेशन थी दैट इज अवर पाइवोट इक्वेशन। सिमिलरली यदि हमारे पास यहाँ पे देखें, हमारे पास में ये नंबर क्या है, पाइवोट एलिमेंट है, बिकॉज हमने इसका यूज करते हुए रिमेनिंग एंट्रीज को 0 बनाओगे आप, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, पाइवोट इक्वेशन। सो इन द लास्ट यू कैन से this is our pivot element and pivot first equation, this is our second pivot element and second pivot equation, this is our third pivot element and third pivot equation, this is our nth pivot element and this is our nth equation. ठीक है। So if it is round of error maker, the problem can be avoided by adopting the procedure known as the pivoting. अब इसमें क्या करेंगे, if a1 is either 0 or very small compared to other coefficient of the equation, then we find the largest available coefficient in the column. It means हमारे पास जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है जहाँ पे क्या है, सारे के सारे x1 के कोफिशिएंट्स हैं below the pivot equation and then interchange the two rows. It means उस कॉलम में सबसे जो लार्जेस्ट है उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे, और जो फर्स्ट पोजीशन पे था उसको उसकी पोजीशन से रिप्लेस कर देंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में यदि a11 की वैल्यू यदि क्लोज टू 0 या 0 है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस कॉलम के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसका फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे, और जो फर्स्ट पोजीशन पे है उससे उसको रिप्लेस कर देंगे। नाउ है ना, इन दिस वे वी ऑब्टेन ए न्यू पाइवोट इक्वेशन विद ए नॉन जीरो पाइवोट एलिमेंट, सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड पार्शियल पाइवोटिंग। इट मींस हमारे पास में जो फर्स्ट एंट्री यदि आपकी क्लोज टू 0 है और उस कॉलम में रिमेन देखें तो सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको यदि हम इक्वेशन को इंटरचेंज कर दें, उससे उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं पार्शियल पाइवोटिंग। ठीक है।
और यदि हम लार्जेस्ट एलिमेंट निकालें इन द बाय चेंजिंग द कॉलम एंड रो, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंप्लीट पाइवोटिंग। लेट अस सी दिस प्रोसेस बाय यूजिंग दिस एग्जांपल फर्स्ट। यूज गॉस एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपके पास में 3 इक्वेशंस गिवन है और 3 अननोन्स गिवन है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिराइव द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना सकते हैं। ax इक्वल टू बी वेयर a इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। आपके पास में जो x के कोएफिशिएंट है उसका फर्स्ट कॉलम, y के कोएफिशिएंट है उसका सेकंड कॉलम और z के कोएफिशिएंट है उसका थर्ड कॉलम। आपके पास में अननोन्स क्या है, x y z है, तो उसका कॉलम हो जाएगा x y z। राइट हैंड में जो नॉन जीरो एंट्रीज हैं उनकी कॉलम बन जाएगा b। सो वी हैव राइट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल टू b। सो दिस इज आवर मैट्रिक्स इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट पड़ा किसी को? करेक्ट। सो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था उसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। नाउ वी डिफाइन द मैट्रिक्स सी ए बी। यदि आप लोगों को पता है तो हमारे पास में बेसिकली हो क्या रहा है, इन कोफिशिएंट्स में चेंज हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इन एंट्रीज में चेंज हो रहा है। सो वी डिफाइन ए न्यू मैट्रिक्स सी इन दिस फॉर्म ए बी। जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर जो राइट हैंड वाला जो बी कॉलम है हमने उसको ऐड कर दिया यहाँ पे, है ना। सो वी गेट दिस मैट्रिक्स सी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हमने क्या किया, जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर बी वाला जो मैट्रिक्स का कॉलम है वो हमने ऐड करके एक न्यू मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया। we have defined this matrix, जहाँ पे ये जो लाइन है वो डिनोट कर रही है कि we have added this column B in the matrix A। अब हमको क्या करना है कि सपोज, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टारगेट क्या है, इस जो हमारे पास A मैट्रिक्स है बेसिकली ये वाली, ये मैट्रिक्स आपकी और ये वाली B मैट्रिक्स है। सो वी रिड्यूस दिस मैट्रिक्स इनटू द अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये डायगोनल एंट्रीज आपके पास में 2 2 9, इसके नीचे वाली एंट्रीज को आपको 0 बनाना है, 3 को 0 बनाना है, 1 को 0 बनाना है और 4 को 0 बनाना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम इस 3 को 0 बनाना चाहें बाय यूजिंग दिस इक्वेशन और दिस पाइवट एलिमेंट 2, अब 3 को 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? बताइए बेटा। सर 2 से डिवाइड एंड 3 से मल्टीप्लाई माइनस ऑफ। फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से, इस जो फर्स्ट रो है इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। सो बताइए फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी आफ्टर डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3? यहाँ पे एंट्री की इतनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा आपके पास में, बिकॉज इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा आपके पास में। नाउ वी सबट्रैक्ट दिस न्यू रो बाय दिस सेकंड रो, तो ये वाली एंट्री तो आपकी 0 बन जाएगी, दिस इज 0। अब नाउ 2 माइनस 3/2, यहाँ पे एंट्री क्या मिलेगी आपको? 3/2 है, बिकॉज आपने इसको 2 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो 2 माइनस 3/2 इट मीन्स 1/2, 3 माइनस 3/2 it means 3/2 and this is 18 minus 15 it is 3। सो आपकी जो सेकंड रो ये बन जाएगी, फर्स्ट रो में आपके पास में कोई चेंज नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? नो सर। नाउ हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या है, इस एंट्री को 0 बनाना है। अब इस एंट्री को 0 बनाने के लिए क्या करना होगा? फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हुए जस्ट इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। राइट, इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे फर्स्ट रो को, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 1/2 1/2 एंड 5, और अब इसमें से आप माइनस कर देंगे। सो ये एंट्री आपकी 0 बन जाएगी। यहाँ पे 4 माइनस 1/2 इट मीन 7/2, 9 माइनस 1/2 इट मीन 17/2 एंड 16 माइनस 5 इक्वल्स टू 11। यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। हमने क्या किया, जो हमारे पास में फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x1, इसका यूज करते हुए हमने इन 3 और 1 को 0 बनाया बाय यूजिंग दिस रो ट्रांसफॉर्मेशन r2 minus 3/2 r1 and r3 minus 1/2 r1, then we get this matrix। now our next target क्या है? सेकंड डायगोनल एलिमेंट हमारे पास कितना है? 1/2 है। so by the application of this second row we make this 7/2 is a 0। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा आपको?
यदि हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें सेकंड रो को और इनमें से माइनस कर दें तो ये एंट्री 0 बन जाएगी आएगी। यस नो? यदि सेकंड रो को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना बन जाएगा, 7/2 बन जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है, 7/2 है, तो ये एंट्री आपकी 0 बन जाएगी। So if we multiply the second row by 7 and subtract from this equation, then we get this row 0, 0, -2 and -10. So हमारे पास में न्यू मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है, सेकंड में भी कोई चेंज नहीं है, और थर्ड आपकी ये वाली बन जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। नाउ यू कैन सी दिस मैट्रिक्स है, ये हमारे पास में क्या है, ए मैट्रिक्स है। अब ये आपकी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में है या नहीं है? यस सर। नाउ वी हैव रिड्यूस्ड आवर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनटू द अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास में, वी यूज द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन। सो देयरफॉर अपर ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब इस जो है इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास में फर्स्ट कॉलम किसके कोएफिशिएंट हैं, x के हैं, सेकंड कॉलम किसके कोएफिशिएंट्स हैं, y के हैं, थर्ड कॉलम किसका कोएफिशिएंट है, z के कोएफिशिएंट्स हैं, और ये जो लास्ट फोर्थ कॉलम है दैट इज द राइट हैंड पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आपकी जो फर्स्ट रो है आप उसको क्या लिख सकते हैं, 2x + y + z = 10, यस और नो? यस सर। सेकंड जो रो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0x 1/2y + 3/2z = 3, यस और नो? यस सर। एंड लास्ट रो हमारे पास में क्या बन जाएगी, 0x + 0y - 2z = -10। So you can write this in the matrix form this way। अब यहाँ से आप z की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से z की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 5 मिलेगी। अब इस z = 5 यहाँ से जो मिला है उनको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिलेगी, दैट इज इक्वल टू -9। अब y और z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 7। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द बैक सब्स्टिट्यूशन। इट मींस हमने पहले किसकी वैल्यू निकाली, z की पहले निकाली, उसके बाद में y की निकाली और फिर x की निकाली। लास्ट वेरिएबल की वैल्यू हमको पहले मिली है और जो फर्स्ट वेरिएबल की उसकी वैल्यू हमको सबसे लास्ट मिली है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, बैक सब्स्टिट्यूशन है। कोई डाउट बेटा इस प्रोसीजर में? नो सर। नो सर। ठीक है। सो करना कुछ नहीं है, आपके पास में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखना है आपके पास में, ax = b, जहाँ पे a क्या है, जो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशंस के कोएफिशिएंट हैं x y z के हैं ना, x हमारे पास में अननोन का कॉलम है, b हमारे पास में राइट हैंड साइड है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू मैट्रिक्स डिफाइन कर देंगे which is known as the augmented matrix। It means A मैट्रिक्स के अंदर B वाला कॉलम आप ऐड कर देंगे। अब आपके पास में टारगेट क्या रहेगा, जो डायगोनल पे एंट्रीज हैं उनके नीचे वाली एंट्रीज को आप 0 बनाएंगे बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस ओनली। ठीक है। सो आपकी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप अगेन सिस्टम इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास में इस फॉर्म में बन जाएगा। नाउ वी यूज बैक सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x, y एंड z। ठीक है, कोई डाउट इसमें कहीं को? Now let us see second example. Solve the system। अब x1 का कोएफिशिएंट क्या है, 0.0003120। यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट कितना है, 0.50000। And the exact solution of this system is given by x1 = 1 and x2 = 0.5। Now here we use pivoting। बिकॉज पाइवोटिंग क्यों यूज करना, बिकॉज यदि आप देख पा रहे हैं x1 के जो कोएफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशंस में, दिस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस नंबर और विच इज क्लोज टू 0, यू कैन से। यस सर। भाई आपके पास में जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट x1 का कोएफिशिएंट है विच इज क्लोज टू 0 कंपेयर टू दिस नंबर, तो हम यहाँ पे पाइवोटिंग यूज करेंगे और इसको विदाउट पाइवोटिंग भी सोल्व करेंगे। दोनों हम यूज करेंगे, पाइवोटिंग एंड विदाउट पाइवोटिंग। पाइवोटिंग में क्या करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल
तो हमारे पास में सिस्टम है, वी रीराइट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारे पास में ये मैट्रिक्स बनेगी, दीज आर दी x1 कोफिशिएंट, दीज आर दी कोफिशिएंट ऑफ x2। ये हमारे पास में अननोन का कॉलम हो जाएगा और ये हमारे पास राइट हैंड पार्ट हो जाएगा। अब पाइवोटिंग में क्या करेंगे आप, दिस नंबर इज क्लोज टू 0 कंपेयर टू दिस नंबर, सो वी इंटरचेंज दीज टू रोज। यही करना है हमको पाइवोटिंग के अंदर, कि हमारे पास इस कॉलम में हम सर्च करेंगे कि इसके कंपेयर में दूसरा नंबर कोई बड़ा हो ये, तो उससे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास यही नंबर है विच इज लार्जर देन टू दिस नंबर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड रो को आप इंटरचेंज कर दोगे उस केस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन है न्यू मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स हमने डिफाइन कर दी। इट मींस ए मैट्रिक्स के अंदर हमने बी वाला कॉलम हमने ऐड कर दिया, ये जो बी मैट्रिक्स है इसका कॉलम हमने इस ए मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने क्या किया, ये नंबर क्लोज टू 0 है कंपेयर टू दिस नंबर, तो हमने इन दोनों रोज को आपने इंटरचेंज कर दिया। तो आपके पास में ये वाला सिस्टम बन जाएगा। ये सुनो, उस सेकंड रो को आपने फर्स्ट बना दिया और फर्स्ट को आपने सेकंड बना दिया। कोई डाउट यहां तक? नाउ अब आप क्या करेंगे, इसका यूज करते हुए, दिस इज अवर फर्स्ट पाइवोट एलिमेंट, इसका यूज करते हुए आप क्या करेंगे, इसको आप 0 बनाएंगे, बिकॉज वी नेक्स्ट अवर टारगेट इज टू फाइंड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमको इसको 0 बनाना है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, फर्स्ट वी डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 0.5 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। इट मींस हमारे पास में ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R2 माइनस दिस नंबर डिवाइड बाय दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय R1। सो यदि आप ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आपकी फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, आपकी सेकेंड रो बन जाएगी 0, 0.005474 एंड 0.002737। आप ये ट्राई करके देखना, तो आपके पास में ये एंट्रीज मिलेगी। नाउ हमारी मैट्रिक्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। आप पे देख पा रहे हैं, तो ये फर्स्ट डायगोनल है, इसके नीचे एंट्री 0 है, ये सेकंड डायगोनल है, इसके नीचे कुछ एंट्रीज है ही नहीं। तो दिस इज अवर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ वी यूज बैक सब्स्टिट्यूशन। तो बताइए फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, फर्स्ट रो क्या से फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, बता सकता है आप में से कोई, इस फर्स्ट रो से आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0.5x plus 0.8942y equal to 0.971। सेकेंड रो से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? 0x plus 0.05474y equal to 0.0002737। Alright. So now we use back substitution। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे, y का मतलब x2 की वैल्यू निकालेंगे। यदि आप इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका x2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.5। आप चेक कर सकते हैं आप इसको, इफ यू डिवाइड दिस नंबर बाय दिस नंबर देन यू गेट x2 इक्वल्स टू 0.5। अब आप इसको बैक सब्स्टिट्यूशन, दो इक्वेशंस आपको जो मिल रही है, वहां से x2 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0.5 मिलेगी। इस x2 की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, देन यू गेट x1 इक्वल्स टू 1 व्हिच इज क्लोज टू दिस सॉल्यूशन, व्हिच इज एग्जैक्टली द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे x1 और इक्वल्स टू 1 और x2 इक्वल्स टू 0.5 है, और हमारे पास जो हमने वैल्यूज निकाली है बाय यूजिंग पाइवोटिंग, x1 की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, और x2 की वैल्यू 0.5 मिल रही है। सो वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग पार्शियल पाइवोटिंग। यदि हम यहाँ नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, यदि हम इसमें पाइवोटिंग यूज नहीं करते हैं, इट मींस जैसा हमारे पास सिस्टम गिवन है वैसे के वैसे हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हमने इसको अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट किया और उससे सॉल्यूशन निकाला। तो पार्शियल पाइवोटिंग से आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है। नेक्स्ट टारगेट इज विदाउट पाइवोटिंग। तो हमारे पास में सी मैट्रिक्स इस फॉर्म में बनेगी, दैट इज अवर ए मैट्रिक्स एंड दैट इज अवर बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस रो का यूज करते हुए फर्स्ट रो का इस एलिमेंट को हमने 0 बना दिया। तो इट मींस हम फर्स्ट वी डिवाइड द फर्स्ट रो बाय दिस नंबर 0.003120 एंड मल्टीप्लाई दिस 0.5। तो आपके पास में सेकेंड रो बन जाएगी 0 माइनस 8.7725 माइनस 5.3300। नाउ इफ यू अप्लाई द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ से आपको x2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.6076 एंड x1 की वैल्यू मिलेगी आपको -1.0803 विच आर डिफरेंट फ्रॉम दी एग्जैक्ट वैल्यूज।
यहाँ से यदि आप विदाउट पाइवोटिंग इस सिस्टम को सोल्व करते हैं तो आपको एक्शन की वैल्यू मिल रही है -1.0803 एंड x2 की मिल रही है आपको 0.6076, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपके पास में क्या है, x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 0.5। यस नो? तो इट मींस आपको जो आंसर मिल रहा है वो क्या, डिफरेंट फ्रॉम दी एग्जैक्ट सॉल्यूशन एंड विच इज नॉट नियर टू दी एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑल्सो। यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी मिल रही है, -1 मिल रही है, बट आपका x1 कितना है, +1 है। राइट, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पाइवोटिंग। इट मींस आपके पास में यदि पाइवोटिंग आप अप्लाई करते हैं तो आपका सॉल्यूशन किसकी तरफ कन्वर्ज करता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करता है। ठीक है, कोई डाउट बेटा यहाँ पे? इस प्रॉब्लम से हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ द पाइवोटिंग। यदि आपके पास में जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं x डायगोनल पे, जो x1 x2 x3 xn, उनके कोफिशिएंट हमेशा क्या होने चाहिए, जो रिमेनिंग जो कॉलम की एंट्री उससे ज्यादा होना चाहिए, और यू कैन से नॉट नियर टू क्लोज टू 0, 0 के लगभग नहीं होना चाहिए। यदि 0 के लगभग है तो आप क्या यूज करेंगे, पाइवोटिंग यूज करेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? हेलो? No, sir. Okay, so this is all about the Gauss elimination method and system of linear equation. In next lecture we shall study about the iterative method or Gauss seidel